Hello students, welcome to class 8, subject English, unit 1, the best Christmas present in the world. I explained part 1 and some of the paragraphs of part 2 in the previous sessions. Now today before we start, I have just explained some of the new words from the explained paragraphs. The first word is trenches. Trenches means a long deep ditches where soldiers hide from the enemies. जो जो एकदम ઊંડા जो ખાડા ખોદેલા હોય કે જ્યાં એનિમીથી સોલ્જર્સ એનિમીથી બચવા માટે ત્યાં એ લોકો છુપાતા હોય છે ટ્રેન્ચીસ કહેવામાં આવે છે. તો સ્ટેન્ડિંગ ટુ means take position. When soldiers take their position, it is called standing to. The Fritz is a common German name, but here in this lesson, Fritz is used for the German soldier. His name is used for German soldier. Now Tommy is a common English word, but in this lesson it is used for British soldier. Now schnapps is pronounced as schnapps. Schnapps means one type of drink. Sausage means one type of food. Now cello is a musical instrument like a large violin. Now here no man's land means किसी की भी ज़मीन नहीं. इधर जब दो बॉर्डर्स आमने सामने होती है, एक जर्मन बॉर्डर्स और एक ब्रिटिश बॉर्डर, तो उनके बीच में जो भी ज़मीन होती है, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे दो अपोजिट साइड्स है. यहाँ पे जर्मन सोल्जर्स खड़े हैं और यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स है, और बीच में जो भी जगह है उसे नो मैन्स लैंड कहा गया है इधर. Now we will start from the next paragraphs. I hope you revised the explained paragraphs. If you have not revised, you can see the previous videos. Okay, so let's start with another paragraphs. Now Jim told his wife Connie that you cannot imagine my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer. When Jim met Fritz officer, he said about his feelings that he cannot imagine, he said to Connie that you cannot imagine his feelings. Who approached me, hand outstretched, Hans Wolf, he said. जो हैंस वुल्फ, जो फ्रीड्स ऑफिसर था, वो जर्मन सोल्जर था हैंस वुल्फ, वो जिम मैकफर्सन से हाथ मिला रहा था. ही सेड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरा जो हाथ था वो एकदम वार्मली पकड़ा. आई एम फ्रॉम डजलडॉर्फ, आई प्ले द शैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस. एंड जो हैंस वुल्फ है वो कहता है कि मैं डजलडॉर्फ से हूँ. आई प्ले द शैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में वायोलिन बजाता हूँ. शैलो इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायोलिन. एंड ही विश्ड जिम मैकफर्सन हैप्पी क्रिसमस. Now Captain Jim Macpherson I replied. Now Jim said that I am Captain Jim Macpherson and a happy Christmas to you too. Jim Macpherson also wished Hans Wolf happy Christmas. Now I am a school teacher from Dorset. Who is a school teacher from Dorset? Jim Macpherson, in the west of England. Oh, Dorset? He smiled. Who smiled? Here Hans Wolf. Oh, Dorset? Hans Wolf smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. ऐसे बातें करते करते फिर वो कहते हैं, हैंड्स वुल्फ कहते हैं कि मैंने वो प्लेस डॉर्सेट है, वो मैं उस प्लेस को जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल. And then we share my rum ration and his excellent sausage.
एंड फिर मैंने हमारी जो रम थी और सोसाज था वो एक दूसरे के साथ शेयर किया, वो जो ड्रिंक थी और जो फूड था वो एक दूसरे के साथ उन्होंने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हम बातें करते रहे। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड। जिम मैकफर्सन जो था वो लेटर में कॉनी को कह रहा था कि कॉनी, हाउ वी टॉक, हम ऐसे बात कर रहे थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। वो जो हैंड्स वुल्फ था वो जर्मन सोल्जर था, बट ही ऑलमोस्ट स्पोक परफेक्ट इंग्लिश, पर वो इंग्लिश परफेक्ट बोल सकता था। इवन ही टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, उसने कहा कि मैं कभी डॉर्सेट नहीं गया, नेवर इवन बिन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. उसने ये सब कहाँ से सीखा, तो फ्रॉम स्कूल से, इंग्लैंड के बारे में जो भी सीखा वो अपने स्कूल से और बुक्स रीडिंग करके उसने सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, जो थॉमस हार्डी थे उसके फेवरेट राइटर थे, और हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड, विच वॉज रिटन बाय थॉमस हार्डी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। Here Bathsheba, Gabriel Ock and Sergeant Troy, all these are the characters of this story, the role player of this story. Now he had wife and one son. Who had a wife and one son here? Hans Wolf. He talk about Hans Wolf. Hans Wolf had a wife and one son born just 6 months ago. His son born just 6 months ago. 6 महीने पहले ही उसके सन की जो सन का जन्म हुआ था, किसका? Hans Wolf के सन का। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. Here khaki is the uniform of British soldiers and grey is the uniform of German soldiers. So we looked about me, there were huddles of khaki. Huddles means crowd, भीड़ एक प्रकार की। तो यहाँ खाकी और ग्रे सोल्जर्स की, ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स की जैसे भीड़ लगी हुई थी सभी जगह। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जो नो मैंस लैंड जो दो बॉर्डर्स के जो बीच की जगह होती है, मैंने आपको अभी समझाया। तो वहाँ पे जो जैसे कि सभी सोल्जर, जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स की भीड़ लगी थी। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. और वहाँ पे जो स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग सब चल रहा था। और हैंस वुल्फ एंड आई, मैं और हैंस वुल्फ, हमारे जो केक बची थी, जो क्रिसमस केक बची थी, वो हम शेयर कर रहे थे। कॉनी, ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted. He thought he liked the marzipan best. Here marzipan means a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. A cake made from sugar, eggs and almonds, जो बादाम का हलवा जैसे हम कहते हैं, इसी केक पर उसका जो लेयर लगाया हुआ था बादाम, एग्स और शुगर का, तो उसे मार्जिपन बहुत पसंद थी हैंड्स वुल्फ को। I agreed. We agreed about everything and he was my enemy. वो मेरा दुश्मन था, उसके बावजूद भी उसकी सभी बातों से मैं उसकी बातों से एग्री था और वो भी मेरी बातों से। There never was a Christmas party like it, कॉनी। ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई होगी, कॉनी। Then someone, I don't know who, brought out a football. और फिर उसमें से कोई एक, आई डोंट नो हु, कौन था मुझे पता नहीं, पर वो फुटबॉल लेके आ गया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोट्स। जो जर्मन जो सोल्जर्स थे उनका जो यूनिफॉर्म था, उसने ग्रेट कोट्स, जो लंबे लंबे कोट पहने थे, वो उन्होंने निकाल के नीचे फेंक दिए और उसका गोल पोस्ट बना लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज्ड आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और मैच किन लोगों के बीच में था, तो टॉमी अगेंस्ट फ्रीज, जो जर्मन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स थे, उन दोनों के बीच में एक यहाँ पे फुटबॉल मैच होने वाला था ऑन नो मैंस लैंड।
Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. नाउ हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन जो है वो चीयर कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे और हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, और फिर हम जो हमारे फीट है वो भी स्टैम्प कर रहे थे, पछाड़ रहे थे, क्योंकि टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और कोल्ड से वो ठंड भी बहुत थी तो उससे बचने के लिए. There was a moment when I noticed our breeze mingling in the air between us. और मैंने वहाँ पे जो वो मूवमेंट थी तो मैंने नोटिस किया. I noticed our breeze, हमारी जो सांसें थी, mingling in the air between us. Mingling means mix होना. तो हमारी जो सांसें थी वो हवा में हमारे बीच जो मिक्स हो रही थी. He saw it too and smiled. उसने भी ऐसा देखा. हैंस वुल्फ ने भी देखा and smiled. जिम मैकफर्सन, he said after a while, उसने थोड़ी देर बाद बोला. जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war. मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम ऐसे भी इस युद्ध को रिजॉल्व कर सकते हैं. इसका जो ये वॉर है, युद्ध चल रहा है, उसका सॉल्यूशन हम ऐसे मैच खेल के भी ला सकते हैं. अब फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, जो हम फुटबॉल मैच खेल के भी इसका सॉल्यूशन, इस वॉर का सॉल्यूशन ला सकते हैं. क्योंकि नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच में कोई नहीं हारता. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई बच्चा है वो ऑर्फन नहीं होता, अपने पिता के बिना उसे जीना नहीं पड़ता, अनाथ नहीं होता. नो वाइव्स बिकम विडोज, जो पत्नियां हैं वो विधवा नहीं होती. I prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning, probably. और मैंने कहा कि मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, और मैंने उसे कहा कि क्योंकि टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, क्योंकि क्रिकेट हमें अच्छी तरह से आता है और हम उसे जीत भी सकते हैं. probably means possibly. We laughed at that and together we watched the game. इसके बाद हम खूब हंसे और हमने together साथ में बैठकर उस गेम को देखा. और now we will discuss about this story in the next video. Thank you. You have to read this story, the explained paragraph you have read properly. Okay, thank you.